नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Awariako to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and that's a whole lot of people. And if you haven't subscribed to this channel, please do so. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please subscribe करें, प्रदीप जी। When you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. The fastest growing channel of the nation. So, Pradeep ji, BMC elections are over, corporation Yes. elections in 29 corporations are over, and I think we are looking at a 50 to 55% turnout, I think, which is rather sad. I hope it goes up. Now, the figure that we have over here is kind of temporary. It is not the full figure. Very shortly, we will have the full figure with us. और आपको ये भी बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि he is absolutely sure of a massive win. वो कहते हैं कि 27 कॉर्पोरेशंस में वो जीतने वाले हैं। 27, 2 में शायद नहीं जीतेंगे। 27 out of 29. ऐसा कहा है। And one of our spokesperson wanted to know दो छूटा कौन सा है? वो दूसरा वाला जो छूटा कौन सा वाला है, और उन्होंने कहा कि वो शायद मुंबई उसमें से एक होगा। ऐसा डॉक्टर होने बोल रहे थे, but I doubt it very much. But in any event, I think the Sena and the BJP have put up a very very good show. And of course the focus is also on the Thackeray brothers, Raj Thackeray and Uddhav Thackeray ji, और क्या करते हैं वो क्या नहीं करते, but I don't know where it will go, but at the moment the BJP juggernaut seems to be unstoppable. That's my opinion, but I could be wrong. One never knows. In an election one never knows, but the feel on the ground is भारतीय जनता पार्टी जरा आगे चल रही है। प्रदीप जी, all analysis, in fact, shortly you'll find all the exit polls, they say yes, is BJP is getting comfortable majority along with the Mahayuti together. Mahayuti तो ज़्यादा है नहीं, I don't know, Nawab Malik factor will come because तीन चार सीट तो उनका confirm है ही, 2 totally from his own constituency, his own brother and sister fighting, so both will win. And second thing, comfortable जब majority है BMC में, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस number 1, एकनाथ शिंदे जी number 2, I don't think there's much of a problem. I mean, they are absolutely confident where BMC is concerned. all right, let's go to our guests. Let's go straight to our guests. I think we've got our dear friend Asif Farooqi साहब with us after a long time. Asif Farooqi साहब क्या fresh लग रहे हैं साहब, जबरदस्त। All these holidays really seem to suit you. दुबई से आए हैं सीधा, दुबई में शायद चुनाव करा के आए होंगे, मुझे मालूम नहीं है। आसिफ फारूकी साहब नमस्कार। एक रोज के लिए गए थे, कुछ काम था जी। सर बीएमसी के चुनाव के वक्त आप चले गए सर, क्या सर? और बीएमसी के जैसे चुनाव डिक्लेयर हो गए आप चले गए, और बीएमसी इलेक्शन जैसे ही खत्म हो गए आप वापस आ गए। फारूकी साहब वापस। क्या चल रहा है सर, ये क्या साजिश है, कंस्पिरेसी है सर, ये कोई लग रहा है मेरे को। सुशील व्यास जी, हाउ आर यू? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुशील व्यास जी looking very dapper and nice in that blue colored kurta of his, really and truly wonderful. And sir, he has said that tomorrow he will be fully गुलाल में सजा हुआ। तो एक्चुअली व्यास जी, यू हैव टू कम टुमारो, कल आपको आना ही पड़ेगा हमारे। वो देखना चाह रहा हूँ, वो मैं देखना चाह रहा हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल गुलाल में रुत ऊपर से नीचे तक। आपने कहा ना कि आप जीतने वाले हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। आसिफ फारूकी साहब, मैंने मेरा यूती जीतने वाला। यस, महायुति, यस। सर समझ गया, आप हो महायुति हो, युति हो, कोई भी हो, मतलब वो कहते हैं ना, मैं और मेरा भगवान एक ही हैं, ऐसी क्या बात है। मैं जीता तो वो जीता, वो जीता तो मैं जीता, उसमें क्या है। लेकिन आसिफ फारूकी साहब, पहले आप क्योंकि बड़े दिनों के बाद आप आए, रियली लवली टू सी यू सर, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आप जरा बताएं आपका विश्लेषण क्या है सर कांग्रेस के बारे में, और कांग्रेस की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रहेगी, क्योंकि आपने लोगों से बातचीत तो करी होगी, लोगों ने बताया होगा आपको क्या लग रहा है सर? सर, हमारे नेताओं का तो अपबीट नहीं थे, लेकिन मुझको लगता है कि पब्लिक में वो इंथुजियाज्म कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा है, और जो हमारे साइलेंटली जो लोगों ने वोट देंगे जी, उससे कल आपको सरप्राइजेस दिखेंगी। ये मेरा अपना पर्सनल वो है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे पास पैसे नहीं थे, गाजे बाजे के साथ हमारा आवाज़ नहीं ज़्यादा थी, स्टेज नहीं ज़्यादा थे, लेकिन हम पब्लिक के अंदर चूँकि
जो दूसरी पार्टियां हैं उन लोग के तई मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है लोगों को। उन लोगों ने देखा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और यहाँ रोड और सड़कें और ज़िंदगी की बड़ी परेशानी हो गई है, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उसको लेके चल सकती है। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से प्रेजेंट पार्टी खदेड़ रही है और उनके लीडरों को परेशान कर रही है, तो ऑफ कोर्स पार्टी और लीडर परेशान है उसमें। लेकिन पब्लिक का इंथुजियाज्म पार्टी की तरफ बहुत ही अच्छा है। वंडरफुल सर। यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे आता है और क्योंकि आप जानते हैं कि वी हैव बीन ऑब्जर्विंग द कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एज यू नो आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स ओवर हियर, माय फादर, माय मदर, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, एवरीबॉडी वाज इन द कांग्रेस और न जाने कितनी मरतबा जेल भी गए अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करते हुए। और हमारे जो ग्रैंडफादर थे इनफैक्ट वो तो ही वाज द स्टेशन मास्टर ऑफ क्वेटा और वो कुछ बागी जा रहे थे, उनको काला पानी की सज़ा हुई थी और मना था कि उनसे कोई बात करने के लिए। उन्होंने उनको पानी भी पिलाया, उनको खाना भी खिलाया, जिसके तहत वो सस्पेंड हुए और उनको भी काले पानी की सज़ा हो गई। और तो और छोड़िए, तो वी हैव हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द कांग्रेस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि कांग्रेस ने कोई 60 के 62 वार्ड जो हैं वो वंचित अघाड़ी को दे दिए थे कि आप यहाँ पे लड़िए। वंचित अघाड़ी ने कहा कि भाई बाकी सब तो ठीक है लेकिन 19 जगह पे हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तो वो 19 कैंडिडेट उन्होंने कांग्रेस को वापस दे दिए और कांग्रेस को ये मालूम पड़ा कि हमारे पास तो 19 कैंडिडेट है ही नहीं, तो उन 19 जगह पर भी कोई लड़ नहीं रहा है। तो आसिफ फारूकी साहब ऐसे कैसे चलेगा? मतलब ये तो कांग्रेस का गढ़ होता था सर, ये मुंबई शहर जो है, तो मतलब कांग्रेस की जो मतलब लॉयल फॉलोइंग थी यहाँ पे, मतलब इट वाज जबरदस्त। क्या बात कर रहे हैं? तो ये कैसे हो गया, ये जरा बताएंगे? मैंने कहा ना कि हमारे लीडरों के बीच में कनेक्ट जो है वो बहुत ही वीक था और उसका फ़ायदा जो है वो पार्टियों को हो सकता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे वोटर्स थे वो बहुत ही हमसे कनेक्टेड हैं और कनेक्ट होना भी चाहते हैं। तो मुझको लगता है कि जहाँ पे भी उनको वोट देने का मौका मिला है और वो हाथ के पंजे पे दे रहे हैं, पार्टी को दे रहे हैं, वो कैंडिडेट भी नहीं देख रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि राज ठाकरे के पास आने के बाद जो राज ठाकरे उद्धव सेना के साथ आए हैं, तो बहुत सा जो यूपी का जो वो है पब्लिक और अपने माइनॉरिटीज़ जो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे थे, वो डेफिनेटली कांग्रेस की तरफ 100% तो नहीं लेकिन 90% आ गए और उनको उसमें कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिला है। फारूकी साहब, आप एजेंडा आप देखो कि महायुति का, उन्होंने हाउसिंग पर बहुत जबरदस्त तरीके से कंसंट्रेट किया। जो अनाउंसमेंट फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे जी किए साथ में कि हम मुंबई को स्लम फ्री करेंगे विद इन 7 इयर्स टोटल स्लम फ्री। आगे जाके एकनाथ शिंदे जी ने डिसीजन ले लिया कि ओसी करीबन 20,000 बिल्डिंग्स इन मुंबई वाज नॉट विदाउट ओसी नहीं मिला था। ओसी का प्रक्रिया प्रोसेस सिंप्लीफाई करके उनको ओसी देना, और जो पुराने बिल्डिंग्स है पगड़ी सिस्टम में, जो पूरे प्रिंस स्ट्रीट, जवेरी बाजार, तो इतने रिलीफ पगड़ी सिस्टम को टोटली एलिमिनेट करके उनको रीडेवलपमेंट प्रोसेस में लाने का, तो हाउसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है ये इश्यू शायद कांग्रेस ने टैकल करने में या उसको प्रोपोगेट करने में जो थोड़ा पीछे रह गया है? बिकॉज पीपल हैव बिगन टू बिलीव दैट स्लम फ्री, ओसी मिल रहे, मिडिल क्लास सोसाइटीज को ओसी मिलना और पगड़ी सिस्टम को खत्म करना, इट्स अ ग्रेट टॉक। आई मीन पीपल कांग्रेस की जो थॉट प्रोसेस है वो सबके लिए इक्वल है। हाँ, देखिए थॉट प्रोसेस को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो सत्ता में रह के वो ये नहीं देखती है कि सबको इक्वल मिलता है नहीं मिलता है, वो ये कोशिश में रहती है कि किसी तरीके से इस चीज़ को कम या ज़्यादा, चाहे वो गरीबों का फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो एक तरीके से एक मोटा सा डंडा उठा के वो हाउसिंग का है तो उसको कर दिया। वो ये नहीं देख रही है कि बहुत से लोगों को उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है और गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, महंगाई किस तरफ जा रही है। अब वो हाउसिंग जैसे बड़े बड़े रोड शो बना दिए हैं उन्होंने, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या बना है, कितना खर्च हो रहा है। कांग्रेस का ये थॉट प्रोसेस नहीं था। तो कांग्रेस ये था कि सबके ऊपर इक्वल राइट्स होना चाहिए, सब किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए
उसमें हमने बहुत देरी लगाई, हमको उसका बहुत सा नुकसान पहुंचा पब्लिक के बीच में, लेकिन हमारा पब्लिक से कनेक्ट कभी भी खत्म नहीं हुआ सर। ये बात आप मान नहीं, के ये बात रखिए। दुरुस्त है। पब्लिक आज भी हमको ऑनेस्ट समझती है, ये जी। समझती है कि कांग्रेस नहीं, पार्टी इसमें जो इसमें है कोई दो राय नहीं। वो कभी भी धोखा नहीं देगी। सर इसमें कोई लेकिन दो राय नहीं है कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के प्रति बहुत प्यार है अभी भी लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट मी गो टू सुशील व्यास साहब। सुशील व्यास साहब, एकनाथ शिंदे साहब की जो पार्टी है, they know exactly where they stand. I can hear Mr. Daruwala, I think in my ear. Can we do something about that audio, please? Can we do something about that audio, please? It's very disturbing. Either you get him on screen or we do something about it. Now the point is, as far as Eknath Shinde Sahib is concerned, his focus is there for all to see. It's a fiercely focused party, Eknath Shinde Sena. और स्पेशली मुंबई में, ठाणे में, पनवेल में और बाकी हर जगह पे, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि नासिक और नागपुर में भी आपकी जबरदस्त प्रेजेंस है सर। सुशील व्यास जी जरा बताएंगे सर प्लीज। बजाज जी, नाम्बियार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपने जिन महानगर पालिकाओं का नाम लिया वही नहीं, 29 के 29 महानगर पालिका जहाँ पे आज मतदान हुआ है जी, कल इस वक्त तक आप देखेंगे एक सारी जगहों पे एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है वो एक बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जनता के आशीर्वाद से और उनके प्रेम मोहब्बत से देने जा रही है। ये क्यों संभव हुआ? जैसे आप भी हमेशा उनको एडमायर करते हैं कि 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच में जनता के लिए लड़ने वाला नेता अगर कोई पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया महाराष्ट्र में, वो है एकनाथ राव शिंदे। एकनाथ राव शिंदे ने, चाहे जैसे अभी नाम्बियार जी जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वर्षों से जिसको नहीं है उन घर वालों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की एमनेस्टी स्कीम निकालना हो, हाउसिंग बोर्ड में वो जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो, डीम कन्वेंस का मामला हो, जो उनके मातहत जो डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, लाडली बहना, आप चाहे कोई कितना भी कहे, महाराष्ट्र के आप 2.5 करोड़ बहनों के पास जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि लाडली बहना योजना, तो इट इज कनेक्टेड विद एकनाथ राव जी शिंदे। इमीडिएटली कोई कहेगा मेरा लाड़का भाई एकनाथ शिंदे है। तो एकनाथ शिंदे जी का जो काम करने का तरीका है, जनता से जुड़ने का, जनता के बीच में हमेशा रहना, सुख दुख में उनके बीच में खड़े रहना, ये दिखाता है कि किस तरह से जनता का प्यार मिला। जो एग्जिट पोल भी आज जहां तक मुंबई खाली महानगर पालिका का आप देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं, पर हमारा आकलन है इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमारा होगा। सुशील व्यास जी, द मेन थिंग जो है, आपने जो उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि इंक इज गोइंग टू हेल्प यू, जो इंक जो मार्कर है, मार्कर के वजह से आपको बहुत फायदा होने वाला है। वो मार्कर क्यों, क्या इन्वेंशन था, क्यों हुआ, वो बहाना मिल गया कि अब ये मार्कर एक झटके में निकल जाता है, वो आदमी फिर जाके दोबारा वोट करेंगे। डबल वोटर को रोकने के लिए उद्धव राज ठाकरे ने एक फौज खड़ा कर दिया था, हर वार्ड, हर इसके पीछे पुलिस। तो क्या ये इंक करना आपका एक साजिश है महायुति का? नाम्बियार जी, यस, आपने 2 बातें रेज की, बिल्कुल, एक इंक, हाँ, और एक भगवा गार्ड। आपने वो नाम नहीं लिया, भगवा गार्ड, करेक्ट, ठीक है। मैं अभी आपसे जुड़ने के पहले कोई एक दूसरे चैनल पे था, वहां भी यही प्रश्न मुझसे पूछा गया, मैं उसका जवाब आपको दे दूं। हाँ। देखिए, ये इंक जो है, साजिश शब्द आपने यूज किया। साजिश कब होती है? जब कोई घटना होती है उसको अंजाम देने के लिए साजिश होती है। 2011 में तो हमारी सरकार नहीं थी ना, या 2011 में एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस जी नहीं थे ना। चुनाव के आयुक्त ने रिकॉर्ड आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त किया आज दोपहर में कि 2011 नवंबर में एक सर्कुलर निकाल करके ये मार्कर पेन यूज करने का लाया गया है प्रावधान। और 2011 से जब भी कोई स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं उसमें मार्कर पेन यूज हुआ है बजाय वो ब्रश वाले इंक से। और भले मार्कर पेन यूज हुआ, उन्होंने और क्लेरिफाई किया कि द क्वालिटी ऑफ इंक इज द सेम which is used in assembly and parliament election and the same ink is used here also, but only difference is instead of brush we are using marker। अब सवाल इसमें कहाँ कोई गलत बात रह जाती? चलिए मान लीजिए, मैं आपकी बात को मान लीजिए, इनके साथ साजिश हमने कर ली, एज्यूमिंग जैसे हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं ना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई एक्सेप्ट,
चलिए मैंने इंक निकाल लिया। नामबिहार जी, आप तो लॉ जानते हैं, इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल। को जानते हैं। मैं वापस जा करके बूथ में कैसे वोट दे सकता हूँ, अनलेस कि मेरे पास वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड हो, एपिक हो, या आधार नंबर हो, या पैन कार्ड हो। पर वो तो मैंने एक बार यूज कर लिया, Not the दूसरी same बार boot. यूज करूंगा तो मेरे पास डुप्लीकेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ना, कि You नहीं will have to चाहिए? go to a different और booth. अगर है तो उनका पोलिंग एजेंट जो हर बैठा हुआ है वहां पे, वो क्या कर रहा है? गप्पे मार रहा है क्या? उसको क्यों बैठाया गया है? वो पोलिंग एजेंट को इसलिए बैठाया गया है कि जो दोबारा मतदान करने कोई आ रहा है तो उसको पकड़िए, जी। है ना। अब रही बात आपकी भगवा गार्ड की, तो उसी बात से कोरिलेट ये है। भगवा गार्ड का उद्देश्य इन्होंने क्या बताया, विशेषकर राज ठाकरे जी ने कहा कि भगवा गार्ड टी शर्ट पहन के हर बूथ के बाहर लोग इसलिए रहेंगे कि अगर कोई डुप्लीकेट वोटर वोट डालने आएगा तो 2 पांव पे आएगा और 4 पांव पे जाएगा। ये उनकी भाषा है, वो जो है पब्लिक डोमेन में है। अब मुझे बताइए आप कि नामबिहार जी कि इलेक्शन की जो वोटिंग लिस्ट है उसको ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट तो 2 महीने पहले हो गई, कट ऑफ डेट थी 1 जुलाई 2025, उसको बाद में सितंबर की गई, और उसके बाद फाइनल वोटिंग लिस्ट भी 1 महीने पहले आ गई। तो एवरीबॉडी न्यूज नाउअडेज, आजकल तो कंप्यूटराइज का जमाना है और हर वोटर जो है उस लिस्ट में दिखाएगा वो एपिक से जोड़ा गया है। एवरी वोटर है इट्स ओन एपिक नंबर। तो आप कंप्यूटर से एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पता लगा सकते हैं कि कितने डुप्लीकेट वोटर इस वोटिंग लिस्ट में है। तो देन यू नो हाउ मेनी। तो उसके लिए आपको टी शर्ट पहन के बूथ के बाहर जाके सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, वहां मारपीट करने की जरूरत नहीं होती। वो वोटिंग लिस्ट से आप जाइए उस वोटर के घर पे और कहिए खबरदार तेरा नाम 2 बार आया, अगर तू दूसरी बार वोट डालने गया तेरी टांग तोड़ दी जाएगी। ये तो हमारे समझ में आता है, लेकिन जाकर के सीन क्रिएट करना, टीवी चैनलों को अपने बाइक देना और मी ठाकरे का भगवा कलर का टी शर्ट पहन के आप क्या बताना चाहते हो? Right, so let's go to होती है let's go to Dharwala डुप्लीकेट। साहब। आप एक मतलब एक जिसको कहते हैं कि मारपीट का एक माहौल बना करके मतलब दहशत फैलाना ना, चाहते हो क्या? ये इलेक्शन डुप्लीकेट वोटिंग ना तो होती है ना रोकी जा सकती है। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो जो है ईवीएम से उनका गार्ड भी करेंगे, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर खड़े रहेंगे, आपको मैनिपुलेट करने नहीं देंगे। व्यास जी नामबिहार जी, एक बार फिर मैं कम से कम पता नहीं 28-29 विधानसभा लोकसभा चुनाव में मुख्य निर्वाचन प्रतिनिधि रह चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि ईवीएम तीनों जितने भी मुख्य प्रतिद्वंदी होती है उनके एजेंट्स के साथ वो एस्कॉर्ट करके जाता है जहां स्टोरेज होता है, उनके सामने सील होता है, उस पर उनकी साइन होती है, वहां पे सीसीटीवी रहते हैं। यस, हर उम्मीदवार को चाहे वो पार्टी का है या नहीं उसको अधिकार है अपना एक प्रतिनिधि वहां करे जो 24 घंटे वहां बैठे और देखे ये ताला खुल तो नहीं रहा है, अंदर कोई जा तो नहीं रहा है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं। और ठीक है, उनका अधिकार है, प्रजातांत्रिक अधिकार उनको दिया गया, किसने रोका? बहुत अच्छी बात है। प्रजातंत्र की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए अगर कोई दल और कोई नेता इस तरह का कदम उठाता है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अश्योर भी नहीं करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक संवैधानिक संस्था है, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। वो एक निरपेक्ष रूप से ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव को संपन्न कराएंगे और ये बात को हमको मान लेना चाहिए। Wonderful. So let me go across to Dharwala साहब। Ali Dharwala साहब, so what has happened in Pune, sir? पहले तो अपने शहर के बारे में बताइए, उसके बाद बाकी सबकी बात करेंगे। Mahayuti seems to be doing very well. Mr. Devendra Fadnavis is very confident of winning 27 out of 29 corporations. But I want to hear from you what's happening in Pune, sir. Dharwala Good sir. evening, Rajiv sir. Good Pune evening, has sir. been Good a evening. bastion of the RSS. Over here, we have done the seat distribution amongst the 3 main Mahayuti alliance. That is Eknath Shinde ji, NCP, which is our Ajit Dada Pawar, and Shiv Sena. Ji. Over the Shiv Sena, the original Shiv Sena, that is what I'm talking about. Over here, what we have done, areas in the Muslim-dominated areas where we knew and where we were very skeptical that they will not vote for BJP or the Eknath Shinde government, we have put NCP over there. And to add the cherry on the cake, Honorable Sharad Pawar ji has also supported. So in Pimpri Chinchwad, it is going to be a total win. People see, till now I couldn't openly talk about it, but what has happened is that the fishing bait that has been given in the market today is ours. NCP is our alliance, our deputy CM, and what has happened, the vote which were not going to come directly either to Eknath Shinde ji or to Devendra Fadnavis ji is going to come to us via NCP. So over here, what we have done is not even
struck them. They say Devendra Fadnavis ji, Eknath Shinde ji, हमारे अजीत पवार ji are the Chanakyas of modern politics, and we have taken Congress by surprise. Over here, we will use very guarded language over here. We are not going to talk very loosely. We are just 1 hour away from election. But what is disturbing here in Maharashtra, and especially Pune, the turnout. The turnout has been not as per what was expected. Had it at least crossed 65 or somewhere close to 70, we would have been very happy. So I feel the amount of time, but the Rajiv final sir, figures, Pradeep sir, you, me, and we all talk about जी. city development and the road में खड्डे या खड्डे में road, ये सब कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि जनमानस जो है बाहर आके वोट नहीं कर रहा, अपने प्रतिनिधि को वो यहाँ पे भेजने के लिए तैयार ही नहीं है सर. 30-40% लेकिन दारूवाला साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता नहीं है कि ये अनफेयर है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी. आज से फारूकी साहब भी इसके ऊपर रिप्लाई दे, जब भी मैं उनके पास आऊं, सुशील व्यास भी इसके ऊपर गौर फरमाएं. मैं बार बार यहाँ पे पिछले 1 महीने से चिल्ला रहा हूं कि भैया जाके वोट करो, और अगर वोट नहीं करते तो उसके बाद शिकायत मत करना भाई, चिल्लाना नहीं कि बीएमसी काम नहीं कर रही है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रही है, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रही है. अरे यार, तुम बाहर नहीं आ सकते 5 मिनट के लिए, जाकर के अपने बूथ पे तुम वोट नहीं कर सकते हो, और आप अपेक्षा रखते हो 4 बजे तक. राजीव सर, जी. प्रदीप सर, 31% लोगों ने वोटिंग किया सर. ऑफुल. इट इज सच अ शेम सर, इट इज शेमफुल. शर्मनाक सर, शर्मनाक बात है. आई एग्री विद यू देयर प्रदीप जी. दारूवाला साहब, ये जो टोटलिटेरियन तरीके से आप चुनाव करा रहे हो, यू से द इलेक्शन कमीशन इज डूइंग इट. आप जब कुछ कानून में चेंज लाते हो तो व्हाई डोंट यू टेक द ऑपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस? मुंबई के कमिश्नर, ही सेड हम एक पाड़ू करके एक सिस्टम है, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी. बट आफ्टर ह्यूज बैकलैश कि भाई किससे डिस्कस किया आपने? आप अपने आप कोई सिस्टम लेके आप इसमें डालने वाले हो क्या? उसका विरोध करने वाले इसे नहीं अभी नहीं, तो व्हाई? और लास्ट डे में कैंडिडेट्स कैन गो टू द हाउसेस ऑफ द वोटर्स. किस लिए? राज ठाकरे एलिगेशन है कि राज डे को भी आपको घर में जाके पैसा पहुंचाना है. ये करप्शन जो आप कर रहे हो, वोटिंग खरीद रहे हो, उसका आपने ऑफिशियली ये भी कर दिया, ऑफिशियल सैंक्शन भी दे दिया. इवन द लास्ट डे द कैंडिडेट्स कैन गो टू द वोटर्स हाउस एंड मीट हिम. नाउ ये जो टोटलिटेरियन तरीके से आप इलेक्शन रूल्स को मोड़ रहे हो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. दारूवाला साहब, इट्स नॉट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. आपको सबको इन्वॉल्व करके बात करना पड़ेगा. दारूवाला साहब. या प्रदीप सर, ओवर ये सब में पहले देखिए, अगर आप देखेंगे ट्रेंड, और यहाँ पे सुशील व्यास जी है और राजीव सर, प्रदीप सर, आप इतने विजुअल है, आपने जो ग्राउंड पे जाके दोनों ने काम किया उसको मैंने मेरे आंखों से देखा है. 3 बजे के बाद अगर आपने नैरेटिव जो कांग्रेस ने सेट करने की कोशिश करी है, क्या ये शाही इसको मिटा सकते? फिर जो कैंडिडेट्स का मुलाकात है, उनके साथ में जो कॉम्बिनेशन और उनको मिलके उनको समझाने का, उसके ऊपर आक्षेप लेना, ये केवल और केवल डिफीट होने जा रहा है. उसको अब किसके ऊपर, तो भी सर के ऊपर ये नारियल फोड़ना पड़ेगा. तो हमको क्या करना है? तो हमको यही कहना है, क्या ये शाही रब हो सकती है? ये वही क्लोरीन नाइट्रेट लिक्विड शाही है जो आपके उंगली पे लगाई जाती है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो पेन के माध्यम से आपके हाथ के ऊपर लगाया गया. उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अब इसको हम काउंटर कैसा करेंगे? इसको काउंटर करने के 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर. सबसे पहले 90,000 BLOs सारे पार्टियों ने मिलाकर 90,000 BLOs दिए हैं. वो BLOs का जॉब 4 अंदर होते हैं, 4 बाहर होते हैं. और वो सारे पार्टी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे भाजपा के, कांग्रेस के, वो सारे पार्टी की जो पार्टी इलेक्शन में पार्ट ले रही है, उनके पार्टी का BLO अंदर बैठा रहता है. फर्स्ट रो के अंदर अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे रहते हैं. सेकंड रो के अंदर टीचर्स अपनी यादी लेके बैठे रहते हैं. जब व्हेन आई गो एंड गिव माय आधार कार्ड, तो वहां पे मेरा नाम जोर से पुकारा जाता है. वो नाम को पीछे के रो में रिपीट किया जाता. जो टीचर्स है, एजुकेटेड है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कह सकते क्या वो एजुकेटेड नहीं है, वो लोग वो नाम को रीड करते जोर से. और जो 4th रो होता है, 4th रो, वहां पे आपका नाम पुकारा जाता है और आपको स्लिप दी जाती है. उसके बाद में आप उसको उंगली को शाही लगाओ और फिर अंदर जाके वोट करो.
और ये वोटिंग पूरा का पूरा कैमरे के अंदर होता है। तो आप कहना चाहते हैं ये जो 4 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव जो इसको कवच कहते हैं, ये सारे हम उसको एम्बार्क करके, सारे को पेनिट्रेट करके, मिशन इम्पॉसिबल जैसा मिशन इम्पॉसिबल के सीरीज आपने देख के देंगे, आप जाके मतदान करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हारने वाले लोगों का क्राई। इट इज Sir, द what वॉर about, क्राई ऑफ द candidates? पार्टी हु इज बीइंग डिफीटेड। So what about candidates being allowed to meet voters even on the last day? So that was never allowed earlier. पहले तो ये होता था 2 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होता था 48 दिन। मैं आ रहा हूँ आपके Yes, you want to answer. एक सेकंड व्यास जी, एक सेकंड। तो वो सडनली एकदम ये क्या हो गया कि लास्ट डे को भी जा सकते हैं आप वोटर्स के पास? यानी पैसा पहुंचाना है डायरेक्टली घर पे वोटर दारू वाला के। साहब। सर, दारू वाला आप कह रहे राजीव सर, प्रदीप सर, पैसा पहुंचाना, पैसा कहाँ किधर पैसा कौन यूज करता है सर आज के आज तारीख बिना में? पैसे वो के। जवान fake मत narrative सुलवाओ। है, किसी बिना के पास पैसे के इतना वोट पैसा नहीं नहीं है कि अरे वो पैसा सर, पहुंचाए, मतदान खरीदे, क्योंकि ये आजकल डिजिटल सर, हमारे पास मोदी हाँ, era सर, है, फारूकी साहब मैं भी हंस रहे खाऊंगा हैं, ना कैसे हंस खाने रहे हैं, दूंगा। सीधा अगर पैसा 9 पहुंचाया साल के है। बाद में ये लोग आज इलेक्शन में उतरे तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता, ये जी। सारे कैंडिडेट्स के खिस्से खाली हैं। हाँ अभी खाली हो गया। अभी खाली हो गए सर, बढ़ गए दे पैसे दे। सर। बिल्कुल, दे देंगे। जाओ मिलो, जिसको मिलना है मिलो, किसी के पास देने के लिए ना पैसा है। हाय, हाय, ये हाय। सारे के सारे खाली हो चुके हैं। अरे, love और you, आप sir. उनकी दारूवाला साहब, I love आश्चर्यचकित है जब वो लोग कल निवर के जब चुन के आएंगे तो वहां पे लोग अभी ऐसा रेट सर, हर जगह- रेट पे हर ये जगह- मोदी पैसा सरकार खाली है, हो सर गया, हर मैं जगह से खाऊंगा, रिपोर्ट आ मैं खाने रही दूंगा। है फारूकी साहब, हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। अरे यार क्या यार, जू गली हो गई, मालवानी हो गई, बाकी सर, हर हमने जगह केस से रजिस्टर करवाए हैं बैंड्रा। पुलिस स्टेशन के अंदर। सर अरे यार क्या है यार, बीएमसी कैमरे छोड़िए, के सामने छोटे छोटे पुलिस कॉर्पोरेशन कैमरे के छोटे सामने छोटे हमने कॉर्पोरेशन केस में पैसा रजिस्टर बट रहा है। करवाए छोटे छोटे आसिफ फारूकी साहब, छोटे छोटे कॉर्पोरेशन में पैसा बट रहा है और बिना पैसे का कोई हिलने को तैयार नहीं। एंड व्हाट इज द अमाउंट? 2-2 हजार रुपया मिनिमम एक वोट का, और वो बोलिए, पकड़ा नहीं हैं। गया। 5,000 रुपए सर। वो मिनिमम बोला मैंने। ये बीजेपी वालों ने तो एकदम हंगामा करके रखा हुआ है। सर इसलिए रेट खराब कर दिया। देश का तो आगे भलाई होने वाला है, जैसे भी So आप this लोग is all देखिए। loose talk, sir. Sir, We are loose just talk नहीं है, mocking sir. our prestigious channel by talking this way. It is total सर आप loose चैनल का talk. थ्रेट मत करिए, आपकी हकीकत खोली जा रही है। आपको बुरा लग रहा है, आप मजाक समझ रहे हैं उसको। फारूकी नहीं, साहब, नहीं, यू नहीं, कांट फारूकी विन। साहब, आप बिल्कुल चैनल मजाक का नहीं लग मजाक रहा है। फारूकी मैं साहब, कांग्रेस मैं आपको प्रवक्ता बता का रहा हूँ, बहुत आज ज्यादा आदर चिकनी करता हूँ। चुपड़ी आज से बातें फारूकी बोल साहब- के अनमोल है, और आप आप समझते डायमंड हैं है, कि आप आप लोग को सच्चाई खोज के को भी जुटा नहीं लेंगे कि मिलते। पैसे कहाँ कांग्रेस हैं। के प्रवक्ता वो सारे कोहिनूर पैसे का आपने बांटे हीरा हैं है। सर, और आप शर्म दिला रहे हैं चैनल की। क्योंकि आप बड़े सीधे तरीके से चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। हम लोग मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं कि आप कितने सीधे सरल तरीके से इतनी बड़ी बात को निगल गए और अपना झूठ आपने साबित कर दी, सच्चाई में बदल दिया। लेकिन सर, फारूकी बिल्कुल, साहब, ये आपको पहले आपने मिसिंग देखा था सुशील क्या? व्यास जी। अरे दारूवाला साहब, क्या एक सेकंड। तरीका है आपका? दारूवाला साहब, मैं मैं- फारूकी साहब से बात तो करने दो। बड़े दिनों के बाद आए फारूकी साहब। सर फारूकी साहब बहुत बड़े, बहुत सीरियस बजाज काम जी, से गए। भैया, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। गुस्सा मत व्यास करिए। साहब, I am मैं coming to साधारणतः you. बीच में बोलता नहीं, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है जिसमें बोलना जरूरी है। बोलिए, इसलिए मैं बोलिए, आपसे माफी बोलिए। चाहता हूँ, बोलिए। आपसे विनती कर रहा हूँ कि ये आपका आपने चैनल। एक प्रश्न किया कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 48 घंटे से ज्यादा कम समय का जो प्रचार करने का जी, समय जी, दिया गया जी, जी, सर, नाबियार जी, जी ने समझाइए ये सर, प्रश्न समझाइए, उठाया, समझाइए। आपने भी कहा। मुझे आशा थी कि मेरे भाई दारूवाला जी इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप लेकिन आप बोलिए सर, बोलिए बोलिए। तो मैं उसको एक लीगली वे में आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोविजन है सेक्शन 126 ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसमें कहा गया है कि चुनाव के जो खत्म होने का जो है, जैसे 7-5:30 बजे चुनाव खत्म हुआ तो उसके 48 घंटे पहले सार्वजनिक प्रचार बंद हो जाएगा। जी हाँ। और उसी के तरह का प्रोविजन है इस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1988 में सेक्शन 227 AA। सेक्शन 27 AA वी से कि ये जो पब्लिक प्रोपेगेंडा है और हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रचार है सार्वजनिक रूप से, वो बंद होगा। लेकिन कभी कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप घर जाके उम्मीदवार या उसके समर्थक छोटी छोटी संख्या में, 4 से कम की संख्या में व्यक्तिगत प्रचार लोगों से संपर्क नहीं कर सकते या आप जाके लोगों से मिल नहीं सकते। अब जो ये अलाउ हुआ है वो यही है कि आप पर्सनल लेवल पे जाके अपने मतदाताओं से, आप या आपके समर्थक, ये तो पहले से था।
नई चीज क्या आई है इसमें? सर इसमें उसमें ये कहा जा रहा ये है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में। ये कानूनी प्रावधान है, इसमें कोई गलत काम नहीं तो हुआ। इसमें ये दूसरा कहा जा प्रश्न- रहा है व्यास साहब दूसरा एक नामदेव जी, आपने एक और इसी तरह का प्रश्न पूछा था दारू वाला जी से। दो एक तो ये पूछा था, एक कुछ और पूछा था आपने। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि इसकी आड़ में आखिरी दिन भी पैसे बांटे गए हैं। तो ये पहले कहा नहीं गया बांटे है। जाते थे क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आपके पास ज्यादा है ना। बांटे जाते थे सर, आपके पास कांग्रेस ज्यादा वाले है। नहीं बहुत ज्यादा बांटे। ही हो रहा है व्यास जी, बहुत इतना रेट बढ़ा दिया कि कांग्रेस और कांग्रेस तो खत्म है सर यूपीटी अभी। कोई रेस में ही नहीं है। That's a different thing. That's a political issue. बट आई वुड लाइक टू आस्क फारूकी साहब दिस। फारूकी साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। सर फारूकी साहब, आपने 62 सीटें दे दी वंचित बहुजन अघाड़ी को, उसमें से वो 19 पे खड़े नहीं हो पाए, उन्होंने 19 सीटें आपको वापस दे दी। आपके पास 19 कैंडिडेट भी नहीं थे सर। और नहीं सर, यू डिडंट इससे हैव पहले कैंडिडेट्स। हमको अलायंस का बड़ा ही खराब हमारे को रिजल्ट आया था, इसलिए हमने ज्यादा अलायंस नहीं किया। अब ये भी हमने देख लिया कि किस तरीके से पार्टियों ने हमको डिच किया है लास्ट मोमेंट के ऊपर। हम जी। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। और मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि हमारे नेताओं के बीच में कनेक्ट बहुत कम रह गया था, बहुत लूज था, और जिसका फायदा सामने वाली पार्टियों को होगा। लेकिन जहां तक वोटरों का सवाल है सर, वोटर जो है बीजेपी और शिवसेना सबसे परेशान है, और वोटर ने झाड़ के कांग्रेस को वोट दिया है। कल सीटें आएंगी तो आप देख लीजिएगा। आई होप सो, आई होप यू आर राइट सर। लेट मी गो टू नेताओं की I want to ask फारूकी साहब, ये आपका जो इंडिया अलायंस है, अब बिखर गए। उद्धव जी अलग लड़ रहे हैं, आप अलग लड़ रहे हैं। आप हमेशा डेवलपमेंट के खिलाफ थे। जहां भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होते हैं आप लाल झंडे लेकर पहुंच जाते थे उधर वहां पर। अभी लेटेस्ट है वादामान प्रोजेक्ट, उसके खिलाफ आप लोग इस प्रकार से हंगामा कर रहे हैं कि नहीं आने देंगे। उससे पहले जैटापुर प्रोजेक्ट था, नानार था, बुलेट ट्रेन को आप लोग ने डिलीट किया, आपका सरकार ने डिलीट कर दिया, और करीबन 90,000 जॉब बुलेट ट्रेन के लिए डिले हो गए। आप जो ये मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स को आप लोग ने, आपके सरकार ने डिले कर दिया। करीबन 3 लाख नौकरी जो पहले लगना चाहिए था वो डिले हो गया। यानी आप लोग आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि एंटी डेवलपमेंट। क्या है सच है? और वापस आ रहे हैं। नहीं सर, पहले तो आप अपने आप को करेक्ट कीजिए हाँ हाँ, कि हमारी गवर्नमेंट जो है एंटी डेवलपमेंट नहीं है। ओके, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि किसी का जाति हो, किसी के साथ में नुकसान हो। वो सबका हक बराबर देना चाहती है, जिसमें लॉजिस्टिक्स में वक्त लगता है, जिसको वक्त लगने को आप जो है डेवलपमेंट के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कोई दादागिरी कांग्रेस के अंदर नहीं होती है सर। जैसे पूरे डेवलपमेंट जो है उसके जितनी प्रक्रिया है उसको पूरा करके करने का समाधान है, उसका करते हैं, उसमें वक्त लगता है। जैसे अब ये टनल बना रहे हैं तो टनल के अंदर इन्वायरमेंट की अब ज़रूरत नहीं है सर। क्यों नहीं ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। मैं भी कहूँगा हम थोड़ा उस प्रोसेस को हमको फास्ट करने की ज़रूरत थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने तो उसको ख़त्म ही कर दिया कि टनल आप बनाइए, उसमें एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फ्यूचर जो है बहुत ब्लीक है सर, क्योंकि इनकी स्टडी जो है जिस तरीके से ये करते हैं तो आपको फ्यूचर में रोड ख़राब मिलेंगे, हादसा ज़्यादा होंगे। ये स्टडी ज़्यादा नहीं करते। जिस तरीके से टाटा के एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो इस तरीके के मामलात जो है ना इसलिए हो रहे हैं कि ये जल्दबाजी में पूरी स्टडी नहीं करते हैं, हादसे होंगे और पब्लिक का उसमें नुकसान होगा। गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है कि भाई डेवलपमेंट बड़ा हो रहा है, ऐसा करके आपके सामने बातें आएंगी। कांग्रेस जो है पूरी स्टडी करती थी और हर समाज की ख्याल रखती थी कि इसके मछेरों का कहीं उनमें जाति ना हो जाए, माइनॉरिटीज़ का उसमें ना हो जाए, एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ना हो जाए। तो उससे क्या होता था सर? उससे क्या होता था कि काम बनता नहीं था, प्रॉब्लम ये हो जाती थी, कम डिले हो जाता था। डिले हो जाता सर। तो वो मौका मिल गया सामने वाले लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है, फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि थोड़ी बहुत ठंड हो गई है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि हेल ऑफ अ लॉट ऑफ सेडिमेंट हैज सेटल्ड डाउन। बट इवन टुडे एवरेज AQI इन मुंबई इज अराउंड 169 के करीब का एवरेज AQI है। तो बेहतर पोल्यूशन लेवल्स आर गोइंग अप। व्यास साहब आप ये बताएं सर, ये पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ा है, लोगों की बीमारियां बढ़ेगी, डॉक्टर का बिजनेस बढ़ेगा, डॉक्टर लोग बड़े खुश हैं, दवाओं की खेप ज्यादा लगेगी। लेकिन आप देखिए कि आपको भी खांसी और सर्दी और सर हो रही है मुझे, आज तक कभी बॉम्बे में हर चैनल के एंकर्स I have quit smoking, sir. I have quit smoking completely. In spite of that, I'm तो suffering वैसे ही from a आप golden 40 cough. सिगरेट के बराबर तो सांस के अंदर ले रहे हैं सर। जी बिल्कुल। सिगरेट तो मैं वैसे पीता भी नहीं था। I always used to smoke a pipe or a cigar. And
दिस व्हाट हैज हैपेंड नाउ ऑल आई एम सेइंग इज व्यास जी यहाँ पर एक पॉइंट तो है, एकनाथ शिंदे साहब की स्पीड जबरदस्त है, काबिल तारीफ है। आई एम अ फैन ऑफ हिज राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू वर्क विद आनंद दिग्विजय। आनंद दिग्विजय ने मिलाया था एक्चुअली मुझे जनाब एकनाथ शिंदे साहब से। मातोश्री के बाहर हम लोग निकल रहे थे बाला साहब ठाकरे के घर से, मातोश्री के बाहर नहीं, सॉरी नॉट आउटसाइड, पुरानी मातोश्री, पुरानी जो पुराना जो उनका घर था सर का, वहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे थे कलानगर के, अभी तक नया घर बना नहीं था। तो आनंद दिगे साहब आए थे, उन्होंने मुझे मिलाया था एकनाथ शिंदे साहब से, और आज तक वो मेरे घर के अंदर वो जो एक थानेश्वरी, जो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है ना, आपके घर में भी होगी शायद, मुझे मालूम नहीं है, एकनाथ शिंदे साहब हैड प्रेजेंटेड इट टू मी हिमसेल्फ, क्योंकि वो माता का हवन कराते हैं हर बार आनंद दिगे के घर में, तो ही हैड गिवन दैट ब्यूटीफुल पिक्चर टू मी, इट्स सो ह्यूज, इट कवर्स वन कंप्लीट वॉल, इट इज स्टिल देयर इन माय हाउस। But his speed is fantastic. But what Asif Faruqi Saab is saying, I know it's not related directly to the BMC elections, but perhaps the time has come where you have to be very, very careful of the effects on the environment of every project. Environment के ऊपर ये मतलब फारूकी साहब बोल रहे हैं कि आपको सरप्राइज मिलेगा, मुझे नहीं लगता है, because I have surveyed practically most of the wards in Mumbai, and I stand by my earlier prediction that the Mahayuti or the Yuti between BJP and the Eknath Shinde will sweep the election. But all I'm saying is you got to slow down a little bit, sir. Vyas sahab, अब आप बोले sir, please. स्लो डाउन नहीं, विकास के कार्य तो होने चाहिए, लेकिन पर्यावरण का ध्यान में रख के, मैं इस बात से मैं आपका बिल्कुल सहमत हूँ। पर्यावरण के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको बिल्कुल मानते हुए विकास तो होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण के साथ भी समझौता नहीं होना चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। Wonderful. बट कर रहे हैं व्यास जी, जो अधूरा था बोले पाडू जो यंत्र बीएमसी कमिश्नर इंट्रोड्यूस करने वाले थे, उसका राज ठाकरे जी को ऑब्जेक्शन था कि आप डिस्कस तो करिए ऑपोजिशन लीडर को, आप कुछ भी इक्विपमेंट चेंज करने का साजिश करते हो और ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हो। बीएमसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, उसमें कुछ कमेंट करना चाहोगे व्यास जी? नामविहार जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बात जाननी जरूरी है, और अच्छा है कि आपने प्रश्न मुझसे पूछा। पहले तो मैं आपको बता दूं ये पाडू है क्या। ये जो नेता इसमें बयान दे रहे हैं ना, उनको पाडू क्या है उनका फुल फॉर्म पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे वो लोग। इट इज प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट जी। अब वो इसका काम क्या है, वो कोई जितने 10,000 बूथ है उसमें नहीं लगेगी, वो उसको जोड़ा जाएगा खाली डेटा के लिए, बिकॉज दैट इज ओनली यूनिट विच कैन रीडेबल यूनिट, उससे आप खाली रीड कर सकते हो, आप उसमें कुछ मैन्युफैक्चर या राइटिंग या उसको कुछ बना नहीं सकते। वो आपको खाली जो यूनिट है जहाँ पे वोटिंग हो रही है उस यूनिट से वो जुड़ेगा, उसमें खाली बैकअप के लिए है कि इन केस ड्यूरिंग काउंटिंग अगर आपकी कोई ईवीएम मशीन जो काउंटिंग जिससे हम कर रहे हैं वो अगर फेल हो जाती है टेक्निकली, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज दैट सो कॉल्ड पाडू मशीन फॉर प्रिंटिंग द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बूथ। तो उसमें टोटल 140 पाडू मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है, एंड दैट हैज टू बी यूज्ड इन फॉर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एंड वो काउंटिंग के दौरान ही खाली यूज होगी। और उसको भी ये जो कहते हैं कि तमाम विपक्ष क्या अन्य पार्टियों को नहीं बुलाया गया, इलेक्शन म्युनिसिपल कमिश्नर हु इंचार्ज ऑफ मुंबई इलेक्शंस अंडर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स पावर delegated power, he has went on record, Mr. Gagrani, saying that yesterday we have called all representatives of different political parties and I have shown कि उनको पूरा प्रदर्शन करके दिखाया गया कि how this पाडू will work और इसका काम क्या है, कब इसको यूज में लाया जाएगा, कितने पाडू कहाँ दिए जाएंगे, टोटल 140। और सबसे बड़ी चीज ये क्या पाडू अडानी ने अंबानी ने बनाया है क्या? ये भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, a company owned by Indian government, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, वहां से उन्होंने पूरी उनको प्रोग्रामिंग की हुई है। तो क्या भ्रम फैला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। And in any event, this is a backup in case the electronics fail. This is a backup that will print the result directly. So उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। नहीं, दारूवाला साहब अभी तक जो विश्लेषण आ रहे हैं, अभी तक जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, all the surveys point to a landslide for the BJP and Shinde Sena. Sir, the point is you will win, but what happens after that? Daruwala sir.
पीपल वांट टू नो कि सर आप क्या, चलिए आप जीत गए, उसके बाद जैसे मुंबई है, जैसे पुणे है, सर अभी अभी सड़क बनी, 15-20 दिन के अंदर वहां पे पॉटहोल्स आ जाते हैं, अभी अभी सड़क बनी, फर्स्ट क्लास सड़क है, एंड सडनली यू फाइंड इलेक्ट्रिक केबल लगानी है, तोड़ दिया, इंटरनेट केबल लगानी है, तोड़ दिया, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, तोड़ दिया। सर ये डक्टिंग की बात जो है ये पिछले 25 साल से मैं सुन रहा हूं, और कई कई जगह पे डक्टिंग हुई है एंड इट हैज गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स। सर पीपल वांट टू नो फ्रॉम यू, विल यू कीप योर वर्ड, विल यू एक्चुअली डू समथिंग, और विल इट बी द सेम थिंग अगेन? बोलो साहब। See, Rajiv sir, am I audible? Yes, you are. Rajiv sir? Yes, you are. Very audible. Yeah. Yes. Now I'll tell you one thing. See, as you said that the results are fantastic and they are showing a rujan and we are going to come into power. And I'll tell you one thing. It's not a iota of happiness, even one bit. It is a responsibility. If at all, as you say, if at all we do come to power, and if the people, Janmanas, do give us the Ashirwad, over here, what you said is a question of every household. It is a question of every wife who asks his politician husband or politician mother, but what is this happening? Why are there so many khaddas? Why are the lights not working? Why are the police in the traffic department not giving the result, except Bombay, the result in the rest of Maharashtra? ये नो एंट्री से ये लोग कैसे आते हैं? इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? इनके ऊपर पुलिस का धाक धमकी क्यों नहीं? सर ये जो एक सवाल है, ये आज बीजेपी के इसमें कहो या एकनाथ शिंदे जी के या कांग्रेस के राज में, सर ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है। और मैं ये बात को मानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि हम आएंगे और कल से सिग्नल तोड़ना बंद हो जाएगा, रास्ते खोदना बंद हो जाएगा, नहीं, इसको वॉर फुटिंग के ऊपर लेना है। मैं एक बात जो है ना आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अजीत पवार जी का एक जो एग्जाम्पल है ना सर, पिंपरी चिंचवड़ का जो डेवलपमेंट है, वहां के रोड्स है, ये सारी चीज आपको पिंपरी चिंचवड़ में देखने नहीं मिलेंगे सर। वाइड रोड्स है, पानी का जो सप्लाई 24 आवर्स, ये मॉडल को अगर हम रेप्लिकेट कर सकते, सारे नगर सेवकों को ट्रेनिंग दे सकते, सारे पॉलिटिशियंस को वहां पे 1 महीने का वर्कशॉप, अगर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को अगर ये हमारी आइडिया पसंद आती है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अगर सारों को पिंपरी चिंचवड़ के अंदर 1 मंथ ट्रेनिंग दो, उसी के बाद में आप ऑफिस रिज्यूम करो, अगर समथिंग लाइक दिस कैन बी डन, I think it will be good. It is good. It is beyond politics. It is above the blame game and it is above what the mankind, humanity wants. देखिए मैंने पहले भी कहा था आपको, DRDO, इसरो, ये सब तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं सर। हम आपके मेरे जैसे लोग के बहुत छोटे डिमांड्स रहते हैं सर। क्या जब हम लेफ्ट में तो लाइट नहीं जाना चाहिए, जब हम सड़क पे तो खड्डे में गिर के हमारा पैर नहीं टूटना चाहिए, अगर हम लोग बैठे पे तो कोई सामने से आके नो एंट्री में से हमको सामने से टक्कर ना मार दे। हमारे छोटे छोटे प्रश्न है सर, बहुत बड़े प्रश्न नहीं है सर। दारूवाला साहब, आसिफ फारूकी साहब ने जो प्रश्न उठाया था, आप डेवलपमेंट के चक्कर में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का टोटली डिस्ट्रैक्शन जो आप कर रहे हो, अब जो नासिक में तपोवन में जितने 10,000 11,000 झाड़ जो प्रोसेस शुरू कर दिया आपने झाड़ काटने का, वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आरए में भी आपने 2,200 झाड़ काट दिए थे इन 2019, 2023 में और 200 झाड़ आपने काट दिया। तो सॉल्ट पैन लैंड आपने अडानी को दे दिया धारावी रिडेवलपमेंट में। आपको इकोलॉजी के एनवायरनमेंट का कोई ख्याल नहीं है, आपको सिर्फ डेवलपमेंट, झाड़े काटो, रास्ते बनाओ। एसएनजीपी संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर आप रियल एस्टेट को घुसा रहे हो। रियल एस्टेट आप कह रहे हैं कि करीबन इतने सारे लैंड के अंदर फॉरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, हम लोग डेवलपमेंट कर लेते। रियल एस्टेट को आपने नेशनल पार्क में घुसा दिया। तो व्हाई डोंट यू केयर फॉर द एनवायरनमेंट? आज बैठे हम लोग सब खास रहे, आप खुद खास रहे वहां पर, तो environment is affecting us. Daruwala sir, as you said, this is also something affecting common man. Rajiv sir, save your breath. I got the message and I being from RSS, हम हमेशा कहते हैं हमारा कोई भी वाक्य शुरू होने के पहले पर्यावरण मुक्त, पर्यावरण की सुरक्षा, जन जीवन, मनुष्य के साथ में प्राणी की सुरक्षा, और यहाँ पे जो एक RSS की जो हमारी विचारधारा है, हमारे लिए पर्यावरण ये सर्वोपरि है, जानवरों का, गौ माता का रक्षण ये सर्वोपरि है, और
सिर्फ डिबेट के मामले में जैसा फारूकी साहब ने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मगर मैं एक बात कहता हूँ, ये पॉलिटिकल डिबेट के अंदर कहने के जैसा नहीं है। आरए का जो आपने कहा था, वहां पे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ये आश्वस्त किया था कि हमने ऐसी एजेंसी को हायर किया है जो वहां के पेड़ों को वहां से अपनी रूट से उसको अपरूट करके दूसरे तरफ वो लोग उसको रिप्लांट करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तपोवन के बारे में मैं आपको यहाँ पे डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जो योगी जी स्वयं, मैं कह रहा हूँ योगी जी स्वयं इस विषय के ऊपर काफी अग्रसर है। जो तपोवन में जितने झाड़ को रिप्लेस थे, जितने पेड़ थे, उससे 3 गुना ज्यादा पेड़ नए लगाए गए, उनको वापस सुरक्षित Not the same thing. ट्रांसप्लांट करने का काम किया है। 1 सेकेंड, और मैं आपको डंके के चोट पे कहता हूँ, बस आज जी। आपको पेड़ काटे हुए दिखेंगे। फरूकी साहब बराबर कह रहे हैं, आज उनके सामने पेड़ वहां से हटाए गए हैं, मगर जो जूने पेड़ के बदले में जो 5 साल के अंदर नए पेड़ आने वाले हैं, अब यकीन मानिए, देखिए आप और मैं यही चैनल पे यही रहेंगे, शायद हम प्रवक्ता नहीं रहेंगे या दूसरा कोई, या शायद पार्टी में नहीं रहेंगे, आपको कह नहीं सकते, मगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये जो डेवलपमेंट के ऊपर प्रदीप जी आप ये कह रहे हो कि हम पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, उसका हम कोई ख्याल नहीं रख रहे, बिल्कुल नहीं। ये बात को आपने समझना इतना जरूरी है, जो संघ परिवार से आता है उसका Sir, salt पर्यावरण pans. से प्रेम ये सर्वप्रिय है, और राजकारण से ऊपर उठकर हमें पर्यावरण से Darwala प्रेम है। sahab, ये मैं Darwala आपको sahab. One small आश्वस्त करना question. चाहता हूँ। One small question. It's a very, very small question. I don't know whether you know about this. If you don't know about this, no problem at all. You can always say you'll find out and let us know. I don't expect everybody to know, but people in Mumbai know. So the salt pans serve as a great barrier for the monsoon rainwater which drains back into the sea, and it serves as a wetland wherein most of the water gets absorbed into the earth and does not have a backwash coming back into the city. That's why up till now there was a clear-cut understanding that there will be no development allowed in the salt pans. Now what has happened is, धारावी प्रोजेक्ट के जितने लोग हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस, उनको आप सॉल्ट पैन्स के अंदर बसाएंगे। सर, let me tell you, the eastern board is going to drown. I'm giving you a prediction today. The day that damn thing comes up, there will be a backwash of water. The tides will have nowhere to go, because at the same time you're also cutting hell of a lot of mangroves all along that area. When you do that, you are leaving us open. You are leaving Mumbai open to flooding, sir. New Orleans will happen here. That's exactly what they did in New Orleans when Katrina happened. Hurricane Katrina need not have happened. What they did was, they cut off all the mangroves. They had a straight channel going straight through to the New Orleans port, because all the oil tankers needed to go straight. So that was used as a hurricane highway, and a small hurricane that would have come, that would have passed. Instead of that, New Orleans remained underwater for almost 45 days. Now, I fear something like that might happen to Bombay, sir, or Mumbai. Darwala sir, would you like to say something on that? Yeah, over here, with your permission, you run the show. I feel Sushil Vyasji is a proper Bombay resident, and he's been working. And I remember last time he had very beautifully pointed out, and then it got the show got someone spoke in between. I think Sushil ji is the right person. Right, so let me go to answer in Sushil Bombay. Vyasji. Sushil Vyasji, salt Asif, pans. okay. Salt pans. So, खोल दो, दरवाजा खोल दो। सुशील व्यास जी, सॉल्ट पैन लैंड, वहां पर आप बसाने वाले हैं लोगों को, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस को। आपको लगता नहीं है पर्यावरण हेतु ये, मुझे लगता है बहुत घातक होगा मुंबई शहर के लिए? आप बताएं सर। मैंने पहले भी कहा था, और आज फिर आपकी चैनल के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र के और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो जन भावना के खिलाफ हो, और उनके जिसके जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उनके क्या कहते हैं उसको, शारीरिक रूप से उनको कोई कष्ट या बीमारी कोई फैलाने का कोई काम अगर हो रहा होगा, वो कोई भी ऐसा नहीं होगा। मैंने उसकी डीपीआर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरह की है तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज
जनता के स्वास्थ्य के साथ नहीं होगा, ये आश्वास महाराष्ट्र के और देश के हर नागरिक को हो जाना चाहिए। पर कोई भी व्यास जी- विकास जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके नहीं होगा। हो रहा है लाल जी, हो रहा है। आपने अडानी को अगर हो रहा है और वो अगर ध्यान में आएगा उसको रोक दिया जाएगा। 256 एकर्स अडानी को आपने सॉल्ट पैन लैंड दे दिए, धारा विरोड सॉल्ट पैन एसएनजी एसजीएनपी संजय गांधी नेशनल पार्क एक विनम्रता से एक प्रश्न पूछूं आपसे, जी बोलिए हाँ। सर प्लीज। क्या धारावी का फाइनलाइजेशन हो गया है क्या? ऑलमोस्ट। नहीं बट नहीं, आपने कहा दे दिया, तो दे दिए का मतलब दे कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइन, No. सो एंड इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू हिम। नॉट येट। पहले तो मैं वो समझना चाहता हूँ, दे दिया है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं। बट ऑलरेडी आई थिंक जीआर तो पास हो गया है, पूरे बुल्लुन डंपिंग ग्राउंड से लेके पूरे सॉल्ट पैन लैंड से लेके। ऐसा है ना मेयर जी कि आपका माध्यम से मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो भी आप हमारे भाई बहन जो अफेक्टेड, जिसको अपना फील कर रहे हैं, वो अपने आप को सशंकित में महसूस कर रहे हैं, खतरे में महसूस कर रहे हैं, कि कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो हमारे भाइयों बहनों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता हो, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता हो, और विकास उनके कीमत पे नहीं होगा। No, I'll tell you what संजय राउत जी का कहना है कि एकनाथ शिंदे जी ठीक है पार्टी के अध्यक्ष है, पर इंस्ट्रक्शन वो अमित शाह जी से लेते हैं। अमित शाह जी एक्स ऑफिशियो आपके पार्टी के हेड है, तो जो भी अमित शाह बोलते हैं एकनाथ शिंदे जी ब्लाइंडली उसको फाइल करते थे, साइन मार के उसको इम्पोज कर देते। तो क्या कितना सच है, क्या अमित शाह जी पार्टी के एक्स ऑफिशियो हेड है? ऐसा है नामियार जी। हाँ। आपने कभी संजय राउत जी जब दिल्ली में रहते हैं तो उनका देखा है क्या? वो दिन में कितनी बार सोनिया गांधी जी के घर पे जाते हैं, तो उनको वो अपना याद आ गया कि दूसरे भी वैसे ही होंगे। See, never ever my leader एकनाथ राव शिंदे compromise with his self respect, you know। और जो यूपी का हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन का कोई बड़ा नेता है तो उससे मिलने दिल्ली क्यों कहीं भी जाना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि स्वाभिमान को हमने रख दिया। अब संजय राउत जी को आदत पड़ गई कभी राहुल गांधी जी के यहाँ बैठ जाने की, कभी सोनिया गांधी जी के घर चले, अब तो उनको लगता है सारे लोग इसी तरह से व्यवहार कर रहे होंगे। Right. So, Faruqi Saab, what you have said is very true, very, very frankly speaking, and we are keeping a very, very close watch on this because as far as the सर लेकिन environment मैं is- एक बात बता दूं, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। मुझको please. बड़ी खुशी हुई कि ये दोनों प्रवक्ता हमारे जो दोनों साथी हैं, जी दारूवाला साहब और दूसरे हमारे भाई सुशील व्यास जी, जी हाँ, व्यास जी, दोनों को समझता बहुत अच्छा है सर, और इसके फायदे और नुकसान भी समझते हैं। लेकिन पार्टी का डंडा इतना बड़ा तगड़ा है इनका कि ये उस बात को एक्सेप्ट मतलब टीवी के ऊपर यहाँ आपके चैनल पे करना नहीं चाहते हैं कि कितना गलत हो रहा है। लेकिन इनका जहन पढ़िए कि ये लोग भी बहुत कंसर्न है सर, मैं ये अप्रिशिएट करूँगा सर, एंड थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपके अंदर इतनी इंसानियत है कि आप ये गलत हो रहा है आप खुद समझते हैं, आपकी पार्टी नहीं समझती है सर। वो जब करती है और इतना ख़राब कर चुकी है एनवायरनमेंट के मामलात में कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी किस तरीके की होगी। जैसे आप अभी दिल्ली का देख रहे हैं, दिल्ली में जो हाल है सर, जी दुरुस्त। नो डाउट मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि कांग्रेस ने अगर पहले वो किया होता तो इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन आज 15 साल 12 साल से बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको वर्स्ट कर दिया सर, और आदमी कुछ दिन के अंदर उस एनवायरनमेंट की वजह से मरेगा। सेम चीज़ यहाँ बॉम्बे में आज तक आपको इतना पोल्यूशन और इतनी खराबी नहीं नजर आई, लेकिन जब से ये बीजेपी आ गई है आज धुंधला सर, घर के अंदर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है दिसंबर और जनवरी के महीने में। फारूकी साहब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा सर, संजय गांधी नेशनल पार्क, शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे Sir, Sanjay Gandhi National Park is a green lung. Mumbai is the city which is so lucky. We have a national park inside the city. और किसी शहर में ये चीज उपलब्ध नहीं है सर। अब उसके अंदर भी आप जो है रियल एस्टेट घुसा रहे हैं, हंटिंग लॉजेस बनाएंगे, रियल एस्टेट बना दिया, उसमें से सुरंग घुसा रहे हैं। I don't know what is happening. दारूवाला साहब, I want to talk to Asif Faruqi साहब, but Sir, he nothing. wants to go. No, 1 minute. Asif Faruqi साहब, सब कुछ ये लोग कर रहे हैं वो गलत नहीं है। 17,000 करोड़ टू रिड्यूस पोल्यूशन इनके मैनिफेस्टो में, महायुति के मैनिफेस्टो में 17,000 करोड़ टू रिड्यूस पोल्यूशन। बीएसटी बसेस 10,000 बीएसटी बसेस जो टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो मुंबई में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसने छोटे छोटे गांवठन्स और कोलीवाड़ास को डेवलप करने के लिए टोटल शिंदे जी और देव फडणवीस जी टोटली टोटली कमिटेड है।
तो आप टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। wants to वाटर बॉडीज को रिट्रीव करने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से महायुति काम कर रहे हैं। तो और सेंट्रल पार्क, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, सेंट्रल पार्क, साउथ मुंबई भर के सेंट्रल पार्क होगा। क्या ये सब प्रोजेक्ट्स नहीं है जो पोल्यूशन को रोकेगा? फारूकी साहब, सर मैं जिस तरीके फारूकी से साहब माफी आजाद चाहता हूँ। मैदान Thank you मैंने very पहले much, request Vyas की थी, साहब, आज thank वजह से मैं कहीं और committed हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू मैं सर। माफी चाहता हूँ। जय हम लोग भी भवानी। थोड़ी देर में जाएंगे धन्यवाद, सर, 2 धन्यवाद। मिनट जय हिंद, जय जाइए, आप महाराष्ट्र। भी, हम सबका भी मेरे ख्याल से खत्म है। लेकिन जिस तरीके से आजाद मैदान को इन लोगों ने बर्बाद किया है सर, हम लोग बचपन में जिस आजाद मैदान को, तो वो मुझको नहीं लगता है कि आगे एनवायरनमेंट के लिए ये लोग इतने जहन रखेंगे जो आप बोल रहे हैं। अगर रखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन सर, मेरी ये बात इंसानियत सुनिए। के लिए है सर। मैं दारूवाला साहब के पास जाना चाहता हूँ। दारूवाला साहब, मेरी बात सुनिए। हमारे पास संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके साथ में आर्य फॉरेस्ट है। सर जो है उसको तो प्रिजर्व कर लीजिए ना। वो नया जो आप बनाएंगे नहीं सर, बनाएंगे इनको नाम से ही वो चिढ़ होगी। संजय गांधी है सर, तो वो। चेंज कर दो नाम यार। वो तो हाँ, वो तो लेकिन बाला साहब आप ठाकरे ने भी हमको बोला मारिए मत था। सर। अरे बाला साहब आप ठाकरे का नाम चेंज कर प्रपोजल दीजिए, था। लेकिन हमारा वो आसिफ पार्ट फारूकी रहने साहब। दीजिए। इंसानियत को मत मारिए सर। आसिफ हमको फारूकी सांस लेने साहब, बाला साहब ठाकरे का प्रपोजल था कि डॉक्टर सलीम अली सबसे बड़े बर्ड साइंटिस्ट हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के रहे हैं, उनके नाम पे रख दीजिए। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कर दीजिए उसको। क्या प्रॉब्लम क्या है? लेकिन रहने दीजिए ना, उसको प्रिजर्व कीजिए। दारूवाला साहब, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड सर। Yeah, okay. Over here, I can't see on the screen. Your connectivity is very bad over here, but never mind. I think my voice can reach the people through your channel. We can see you. Over here, I am making it very clear. I'm making it very clear. I really appreciate फारूकी साहब ने कहा कि सुशील व्यास जी और आप लोग थोड़े पर्यावरण को लेके सीरियस है। देखिए, जो लोग हैं जो जमीन से आए हुए, देखिए हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। हमारा दूर दूर तक पॉलिटिक्स से किसी का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं केवल 2 काम से। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा की जो ईमानदारी है, उनका देश के प्रति जो प्रेम है, पर्यावरण के प्रति, और जो पशु के प्रति, जो जो एनिमल्स है उनके प्रति जो प्रेम है, और नेशन फर्स्ट, उसके चलते हुए ये जो पॉलिटिकल मेन प्रवाह है वो इज जस्ट बाय द वे। जैसे हमारे मोदी जी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मोदी जी ये फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सिंपल प्रचारक है। ये जैसा उनका कार्यकाल खत्म होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाएंगी, आप उनको शायद आपके बॉम्बे में, दिल्ली में या बिहार के कोई गांव में एक छोटा काम या स्कूल में शिक्षक का काम करते हुए आप देखेंगे। मगर यहाँ पे प्रायोरिटी इस बात की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज हमारे पास 9 साल 10 साल 11 साल से सत्ता है और ये 10 साल में इसकी जो पृथ्वी की बर्बादी हमारे आने के बाद हुई है। 8-9 महीने हो गए दिल्ली हमारे हाथ में आई है, उसके पहले 10 साल अरविंद केजरीवाल के हाथ में थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 महीने बहुत कम है दिल्ली को हमको इम्प्रूव करने के लिए। मैं कहता अगर 10 दिन भी मेरे पास सत्ता है तो हमने एक ऐसे कड़क कायदे लाना चाहिए, मगर उससे जनमानस ने उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। अगर वी ब्रिंग सम स्टॉर्म, लाइक विंडफॉल laws over here, the people should support. I feel this is a government for the people and by the people. अगर हमको अंदरूनी अगर हमको लगता है कि पर्यावरण ये हमारा है, हमने घर में कचरा नहीं डालना है, हम हमारे बाल बच्चों को अगर एक ऐसी शिक्षा देते हैं, तो मुझे लगता है सरकार का हाथ हम लोग पकड़ के साथ में चलने में हम यशस्वी हो सकते। ये कहना मुश्किल नहीं है। मुझे कह सकता था कि 60 साल आपने क्या किया, 6 महीने मैंने क्या किया, ऐसा नहीं है। वो आपने बोल आज दिया। हमारी जिम्मेदारी We है appreciate और that. हमें आज से शुरू करना है, आज से But you know शुरुआत why? करना है। one second, Yes. Pradeep sir, one second. दारूवाला साहब, one question to you. आप बार बार कह रहे जनमानस अगर हमें समर्थन करेगा वगैरह वगैरह। कभी कभी क्या होता है सर, जनमानस के खिलाफ भी जाना पड़ता है सरकार को। वो सरकार अच्छी होती है जो जनमानस को ये समझा सके कि भाई साहब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि जनमानस को कुछ नहीं पड़ी है। आप उसको किसी को घर आप फ्री में दे रहे हैं, वेदर इट इज ऑन द सॉल्ट पैन और इट इज एनीवेयर, वो तो ले लेगा। सर आपको समझाना पड़ेगा। जो सरकार होती है वो माई बाप होती है हिंदुस्तान में। माई बाप को कभी कभी कनपट्टी पकड़ के अपने बच्चे को समझाना पड़ता है, ये गलत है। कांग्रेस ने वही किया जिसका ये लोग जी। फायदा उठा रहे हैं सर। ये गलत है, आप नहीं कर सकते ये। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क इज अ ग्रीन लैंड सर, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू कांट प्ले विद इट। अब आप बोलें दारूवाला साहब, प्लीज बोलिए प्लीज। देखिए राजीव सर, from 1999 I have been driving to Bombay and back by road. Yes. I have a passion. I normally never take the train. I only drive back and I drive back.
जी सर मैंने जो बॉम्बे से एज यू कम डाउन फ्रॉम द डीवाई पाटिल स्टेडियम से लेके आप जब लेफ्ट टर्न मार के अटल सेतु तक आप जो वहां से नहीं क्या गुजरते हो पाम बीच से, सर मेरे आंखी के सामने लास्ट 20 इयर्स को वो लैंड को अक्लेम किया गया है। ये जो लैंड रेक्लेमेशन का जो पूरा प्रोसेस लास्ट 25 इयर्स में हुआ है साहब। अभी मैं कहने के लिए कह सकता हूँ यहाँ पे नहीं क्या बैक स्लैश कर सकता हूँ, चिल्ला पुकार कांग्रेस ऐसी वो वैसी, अशोक चौहान ने ये किया, पृथ्वीराज चौहान ने ये किया। सर सब लोग का इंटेंशन अच्छा था, मगर बॉम्बे के अंदर जो लैंड का शॉर्टेज है वहां पे आज गोल्ड से ज्यादा महंगा लैंड है। ये लोग ने लैंड को लेफ्ट राइट और अक्लेम किया है, उसको लैंड फिल्स किया है। लोग फिल करते करते एक दिन खपोली तक पहुंच जाएंगे सर। मगर ये एक जो ग्रोथ है जैसा आप कह रहे हो, इसको रोकना इतना मुश्किल है न्यू बॉम्बे के अंदर। गणेश नाइक जी के बारे में मैं कहता हूँ, ही इज वेरी प्रो एनवायरमेंट। वो कुछ कुछ स्टेप्स करते हैं गणेश नाइक जी, और उनकी जो फैमिली वो पर्यावरण के बारे में वो जानते हैं। उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, और एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि लोग कहते थे कि कोई भी काम, कोई भी फाइल, कोई भी गलत काम गणेश नाइक जी के पास लेके नहीं जाना। आई फील आई रिस्पेक्ट दैट गाय फॉर न्यू बॉम्बे। इफ द डेवलपमेंट कैन हैपन एंड इट कैन They are हैपन creating a third Mumbai now. I feel Ganesh Naik ji is the right person who can guide all of us. You know, they're creating a third Mumbai also after Atal Setu. That will be a great plan. I want to talk Daruwala sahab. When Asif Faruqi ji says, you know, surprise हो सकता है, he's not wrong. Because जो manifesto इन्होंने बनाया है, manifesto में 40,000 affordable homes फडणवीस साहब ने बोला, इन्होंने बोला कि हम 1 लाख affordable houses दे देंगे, 1 lakh affordable houses to drive slum free Mumbai. प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ आपने 500 स्क्वायर फीट तक किया है। ये आसिफ फारूकी साहब एंड टीम से 700 स्क्वायर फीट तक हम प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ दे देंगे। बस फेयर 5 रुपया इन्होंने प्रॉमिस किया, जो अभी एग्जिस्टिंग 10 है, 5 रुपीज। तो वेरी से सरप्राइज, तो एनीथिंग 100 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी वेयर टाटा इज कंसर्न, सॉरी नॉट टाटा, बीएसटी इज कंसर्न। तो दीज आर सरप्राइज एलिमेंट्स। अगर लोग इसमें विश्वास करें, दारूवाला साहब, there could be a surprise as Faruqi Saab is saying. Don't you believe, sir? Yeah, I agree. See, there are lots of things in the pipeline. I'm not over here to say that government का मंशा पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करो। देखो, मोदी जी का सपना है हर घर, हर इंसान के सर के ऊपर छत होना है, सबके नल में जल आना है। मगर ये लैंड आएगा कहाँ से? अगर जब मैं कहता हूँ ये लैंड कहाँ से ना कहाँ से हमको लाना है, अगर आप बोलते लैंड को अक्लेम नहीं करिए, सरकारी लैंड जो फॉरेस्ट लैंड है उसको अक्लेम नहीं करिए, तो मैं कहता हूँ हम लोग ने बढ़ चढ़ के कुछ केयर करना चाहिए। वकफ ने आज 9 लाख एकर्स है, उनमें से कुछ 4 लाख एकर्स इंडिया को दे दो। क्रिश्चियनिटी के पास 5-6 लाख जो चर्च है उनके पास ब्रिटिशों ने और मिशनरीज ने दिए हुए इतनी जगह दे दो। आप देश के खुशहाली में, देश की उन्नति में आप सहभागी बन सकते हो। तो वहां से कोई कुछ अपना क्रिएट कीजिए। तो दैट इज माय थॉट ओवर हियर। लेकिन दारूवाला साहब, मुंबई शहर में, संविधान ने कहा सर मुंबई शहर में बहुत ऐसी जगह है, नहीं सकता सर मुंबई शहर में बहुत ऐसी, अरे फारूकी साहब एक सेकंड, मुंबई शहर में बहुत ऐसी जगह है जहां पे नल से जल नहीं आता, अभी तक नहीं आता सर। मैं आपको बोल रहा हूं वहां पे लैंड की क्या जरूरत है? वहां पे तो सिर्फ पाइपलाइन बिछानी है ना, और मेन पाइपलाइन से कनेक्ट करना है। आज तक नहीं हो पाया, आपको मैं बता रहा हूं सर। एंड हियर लेट मी बी वेरी फ्रैंक, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम बिफोर वी लेट यू गो। सर, you can't escape the responsibility of saying that it all because of the Shiv Sena. The Shiv Sena was your partner. You were partners with the Shiv Sena for 25 years. BMC में आप पार्टनर थे ना। पिछली बार को छोड़ करके, पिछले 5 साल को छोड़ करके, उसके पहले शिवसेना का मेयर आपका डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हमेशा बीजेपी का। आप मुझे बताइए सर, आप भी तो थे बीएमसी में इनके साथ, आज आप कैसे भाग सकते हैं ये बोल करके कि हम तो थे ही नहीं यहाँ पे? दारूवाला साहब, मेरा ये कहना है कुछ तो कदर करिए। मुंबई शहर के लोगों के पास देयर आर स्लम्स व्हिच आर ओल्डर देन इवन द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र। देयर वर स्लम्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग सिंस 1936 फॉर एग्जांपल, जैसे गीता कॉलोनी है अपने मलाबार हिल पे। सर वहां पर भी नल है, जल नहीं है। जल सिर्फ एक ही नल में आता है, वहां से हर कोई कलेक्ट करता है, कभी रात के 1:30 बजे, कभी 2:45 बजे, कभी 10:30 बजे। तो आप मुझे बताइए, देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन टू दैट ना सर, दारूवाला सर। आई एग्री विथ यू। 25 साल एक हाथी सरकार उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की, वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी के साथ में
हम लोग भी साथ में सरकार में थे, इसके बारे में देयर इज नो रनिंग बैक। हमारे जब 2 सांसद थे, जब से हमने उनके साथ में गठबंधन और हमारा निकाह शादी शिवसेना के साथ में हुआ, जी। उसके बारे में दो राय नहीं है। मगर बॉम्बे इज अ यूनिक, it is a small, very small island, and it has been 7 penetrated islands. by people 10 times more than a country, than a small country. Yes, quite Over true. here, it has to be dealt with. It has to be decongested. वहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ होने की जा रहा है, पानी की समस्या है, डैम्स को वहाँ पे इरेक्ट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आज हम लोग एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के हमारे को 5 साल की दूरदृष्टि आज जो है ये कहना मुश्किल है। मगर yes, I agree with you. Bombay is a problem. Slum rehabilitation is a problem. We need to develop it. We need to bring in water, more electricity, and we are working on it. And I'm sure very soon देवेंद्र फडणवीस जी जो कहते I हैं वो hope so करके too. दिखाते हैं। और जो हमारे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी का सपना जी, था, दुरुस्त बात। बॉम्बे को शंघाई बनाएंगे, शंघाई बिल्कुल बना सर, के उनका रहेंगे। सपना नहीं अगर था। समंदर के पानी को मीठा करना पड़ा तो वो भी करेंगे। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सपना था सर। Anyway, doesn't matter. We agree with you. Oh, but all I'm saying is, gentlemen, thank you very much for joining us. We'll wait for the results tomorrow. Farooqi Saab and Daruwala Saab. Farooqi Saab, I hope the Congress brings a surprise, but I don't think so, very frankly speaking. I think BJP is very, very far ahead, is ahead in at least 25 to 26 corporations all over Maharashtra. I don't know whether I'm wrong or not, but we'll see tomorrow. Thank उम्मीद you, है, gentlemen. आरज़ू है। कुछ शायरी फारूकी साहब हमेशा ends anyway. All right. Right, Farooqi Saab. जारी करेंगे सर। Yes. Thank you very much. We'll see you Thank again you. tomorrow. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar. Jai Maharashtra. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Well, but the fact remains, Pradeep ji, that as far as the salt plant land is concerned, the point that you brought up, irrespective of whosoever comes to power in the BMC, you can't do that. Yes, sir. That acts as a barrier between the sea and the rest of the land, because Yes, yes. that's where the monsoon water goes straight across into the sea. If you are going to build over there, ये monsoon का पानी जाएगा कहाँ? Sir, It's बाड़ा ही, it will be right there in Mumbai itself. That's what is going to happen. And BJP has got a record of destroying ecology more than the Yes, Congress quite true. and the India Alliance. सर, जो आपने तपोवन की बात करी, Yes, yes. अब मैं दारूवाला साहब को क्या करूं? दारूवाला साहब उसको योगी को कहाँ से ले आए बीच में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं योगी जी ने अपनी नजर रखी हुई है उस पर। अरे योगी जी नहीं है भाई, वह देवेंद्र फडणवीस साहब है। अब मैं क्या बोलूंगा सर? मेरा ये कहना है कि तपोवन में एक वन है, पहले ही उसको तपोवन कहा जाता है। उसके पुराने कई पेड़ तो सर 100 साल पुराने हैं वहां पर। उसको आपको काटने की क्या जरूरत है? आप मुझे ये बताइए। इट्स लाइक कटिंग ऑफ द हेड ऑफ योर ओन ग्रैंडफादर। सर, अगर वहां पर कुंभ होने वाला है, प्रदीप जी, बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, कुंभ होने वाला है। हिंदुओं में बिफोर यू कट ऑफ अ ट्री देयर इज अ होल सेरेमनी इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल। यू हैव टू सीक फॉरगिवनेस, यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। यज्ञ करना पड़ता है, न जाने क्या कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पर चलिए जो भी है, इन एनी इवेंट आई थिंक द बीजेपी एंड मिस्टर एकनाथ शिंदे दे आर कमिंग टू पावर, एंड ऑफ कोर्स Mr. Ajit Dada Pawar will naturally support them. They're all three together. As Daruwala Sahab was saying that ये मिली भगत है हम लोगों की. I hope he's right. I hope he's right. In the meantime, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें. When you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And Pradeep ji, the voting percentage is still not out. The final voting percentage अभी तक आई नहीं है. मुझे लगता कल ही आएगी सुबह. Yes. In any Speculation, event- manipulation, whatever you call it. In any event by 2:33 tomorrow we'll know The results. कि रिजल्ट क्या है पूरे महाराष्ट्र में. तो that's it, that's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.